Good morning, sir, and thank you so much for being part of this Zoom session. Good morning. Good morning. Finally, we meet on Zoom after, I think, 1 year of... Yeah. Yes. Definitely. It's your continuous effort for this meeting. And I appreciate your continuous follow-up and appreciate this follow-up and efforts for this. Thank you, sir. Thank you so much. Shall we start? Yeah. Yes, we can. Yeah. So, sir, the first question is about COVID and Kota. How did Kota react to COVID? What happened in the last 2 years? How did Resonance and everybody else? How did it happen? What was the reaction? So actually, Kota has tackled this situation very well. Although Kota industry is known for the offline classes, offline industry, the students come all over the country and study here. But as we prepare ourselves very well, even for other challenges, like in the past also, many times we have come across different kind of situations. Earlier also, not to this scale, but to some scale, some other kind of diseases happened and we had to run the classes in a very controlled manner. We had to keep the classes off in the morning and in the evenings when the temperature was down, like swine flu, etc. came earlier. So 2-3 times it happened earlier also. So we did the classes in specified time. That was other kind of challenge, but the main thing is that challenge was there and we prepared. Other challenges were also there in past, like exam pattern changes and very late announcement about the changes, etc. So many kind of challenges kept coming, and the system has always reacted to that in a positive manner, and we accepted the challenges and found the solution. So how did we find the solution is that we started teaching the students online. We started teaching the students like online. There are 2 modes: recorded lectures, and then there is a you can say recorded lectures and then live classes also. So in both ways, our team could do things, and the study material was given to the students online. Tests were conducted online. So the things were done very well. And on WhatsApp, the student groups were made. So students were able to ask their doubts from the teachers, and all those things could be handled very well. So it was a completely changed scenario, but we could handle it very well. Okay. But sir, Resonance के students थे कि चले गए वापस घर पे? How was it? No, actually, students, many students were staying here. The old students, like this corona phenomena happened in March, April. तो कई सारे बच्चे जिनके कोर्स खत्म हो गए थे, वो बच्चे ऑलरेडी दिसंबर जनवरी में घर जा चुके थे. बराबर. और इसके बाद रिपीटर वाले बच्चे खास तौर से यहाँ पे थे, जो 12th के बाद ड्रॉप करते हैं ना. So those students were staying in Kota, and those students were also huge in number. और जो 11th से 12th वाले बच्चे आने वाले थे, वो आने से रुक गए थे, because it was a transition time. So ये कुछ इस टाइम पे था कि 11th वाले बच्चे जो आने वाले थे वो इसकी वजह से रुक गए, और जो बच्चे 12th में थे वो बच्चे घरों पे छुट्टियों में जा चुके थे, और जिन बच्चों के बोर्ड के एग्जाम थे वो बच्चे भी अपने घरों पे जा चुके थे बोर्ड के लिए. तो देयर आर 4 काइंड ऑफ स्टूडेंट. 10 से 11 में नए आने वाले वो आए नहीं. 11 से 12th में जो प्रमोट हुए वो छुट्टियों में घर चले गए थे. जो 12th का बोर्ड देने वाले थे वो अपने अपने घरों पे चले गए थे. इसके बाद जो बच्चे 12th के बाद वाले जो रिपीटर बच्चे थे, बेसिकली वो बच्चे यहाँ रुके हुए थे, लेकिन उनको भी अप्रैल मई के महीने में कुछ विशेष व्यवस्थाएं करके, लाइक गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके ट्रेन्स चलवाई गई, स्पेशल ट्रेन्स, और स्टेट गवर्नमेंट से बातचीत करके उनकी बसें यहाँ मंगाई गई. आपको पता ही होगा उस टाइम पे हर स्टेट से, महाराष्ट्र हो, यूपी हो, जम्मू कश्मीर, मतलब दूर दूर के जो स्टेट्स हैं,
आसपास के स्टेट्स तो हैं ही, लेकिन दूर दूर के जो स्टेट्स हैं वहां से भी बसें यहाँ पे आई और बच्चों को उनके गांव शहर तक, उनके गांव तक बच्चों को पहुंचाया गया. So that is how everything was managed very well actually. सर डिड कोविड ब्रिंग अबाउट सम कुछ परमानेंट चेंजेस आ गए क्या रेजोनेंस में? अभी ये हम लोग करेंगे henceforth, ऐसे कुछ चेंजेस आपने किए? तो एक्चुअली क्या है कि कोरोना की वजह से एक परमानेंट चेंज तो ये आया है कि बी रेडी फॉर एनी सच काइंड ऑफ सिचुएशन, दैट इज अ परमानेंट चेंज. अदरवाइज तो क्या है कि अब सिचुएशन धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है, बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं और वो क्लास में पढ़ेंगे, वो सब चीजें हो रही हैं. तो एज सच जो पुराना मॉडल था वो तो चल ही रहा है, बट वी हैव डिस्कवर्ड न्यू थिंग्स इन द कोरोना टाइम विच आर यूजफुल फॉर द स्टूडेंट्स. तो कुछ कुछ चीजें जो हमने टेक्नोलॉजी वाली सीखी है इन 2 सालों में, वो बच्चों को अदरवाइज भी हेल्प करने वाली है, उनके सपोर्ट सिस्टम के रूप में वो काम आएंगी. और बच्चों को मतलब दैट विल कीप देम मोर एंगेज्ड ऑल द टाइम. क्योंकि अदरवाइज बच्चे क्या, जैसे क्लास से पढ़ने के बाद घर जाते हैं, हॉस्टल जाते हैं, अब हॉस्टल में जाके वो कितना टाइम का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं प्रॉपरली अपनी पढ़ाई के लिए वो पहले उतना पता नहीं चलता था. अब क्या है कि बच्चों को हम ऑनलाइन एंगेज करके रख सकते हैं और उनकी एक्टिविटीज को मेजर भी कर सकते हैं कि व्हाट दे आर डूइंग, हाउ मेनी क्वेश्चन दे हैव डन, कितना टाइम लगा, वो कई सारे एनालाइज करने के पैरामीटर्स हैं. सो दैट विल बी एक्चुअली यूजफुल फॉर द स्टूडेंट्स. सर आपके जेई के बारे में क्या क्या राय है? जेई शेड्यूलिंग, रीशेड्यूलिंग, एग्जाम्स, मेंस, एडवांस, इतना कुछ कंफ्यूजन चल रहा है. सो व्हाट डू यू हैव टू से? एक्चुअली रीशेड्यूलिंग जो है, अभी इस बार का रीशेड्यूलिंग मेरे ख्याल से ये थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजिंग रहा है, क्योंकि अब तो कोरोना की सिचुएशन भी खत्म हो गई है, तो इसको बार बार इतना चेंज करना और इतना ज्यादा दूर तक चेंज करना ये सही नहीं था. एक तरह से गवर्नमेंट ने जो पहले डेट्स दी थी ना, वो एक प्रकार से ठीक थी, बच्चे मेंटली उसके लिए प्रिपेयर भी हो चुके थे. अब लास्ट मोमेंट पे इन्होंने वापस चेंज कर दिया उसको, तो बच्चे थोड़ा सा उसकी वजह से एक थोड़ा अनकंफर्टेबल से हैं. हालांकि बच्चों को टाइम मिला है, बट जो पहले अनाउंसमेंट हो गया था और वो काफी देर तक स्टेबल रहा वो अनाउंसमेंट, तो बच्चों ने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया था. बट नाउ ठीक है, अब अनाउंस कर दिया दोबारा, बोर्ड के एग्जाम अब खत्म हो जाएंगे, उसके बाद उन्होंने एग्जाम रखे हैं, पहले थोड़ा बीच में पहले और बाद जस्ट बाद में हो रहा था. तो इन अ वे इट इज गुड ऑल्सो, स्टूडेंट्स आर गेटिंग मोर टाइम, बट इट कुड बी रिटेन्ड ऑल्सो. दैट इज माई ओपिनियन एंड द स्टूडेंट्स ओपिनियन. अब ये है कि एटलीस्ट गवर्नमेंट को अगले साल के जो एग्जाम की डेट है ना, अभी से अनाउंस कर देंगे तो अच्छा रहेगा उन बच्चों के लिए, खास तौर से जिनको अगले साल की तैयारियों के लिए अभी से अपना प्लान बनाना है, सो दैट दे विल नो कि भाई अगले साल का एग्जाम इतनी तारीख को होगा तो मेरे पास इतना टाइम रहेगा, उस हिसाब से मैं अपना प्लान बना के चलूं. अनसर्टेनिटी में क्या होता है कि बच्चा अनकंफर्टेबल हो जाता है और जो उसने तैयारी की होती है उस तैयारी में भी उसको अजीब सा लगता है. सही बात है. बस सर ये इंडिया की खासियत है कि मोस्ट रिजल्ट्स डेट्स आर नेवर अनाउंस्ड. सब रिजल्ट्स कभी ना कभी आते हैं और एवरीबॉडी इज लाइक शॉक्ड एंड सरप्राइज कि अच्छा कल रिजल्ट है, दैट काइंड ऑफ थिंग. कभी कभी कल है वो भी पता नहीं चलता है. एक्चुअली ऐसा थोड़ा थोड़ा इरेगुलरिटी तो होती है, लेकिन आईआईटी के मामले में ऐसा नहीं है. आईआईटी का जैसे अभी आप देखो कि आईआईटी ने जेईई मेन का डेट अनाउंस हुआ, उसके पहले आईआईटी ने अपना डेट अनाउंस किया. और एक एक चीज का डेट आईआईटी वाले तो क्या एक एक डेट उसमें बोल के रखते हैं, चाहे जो भी एक्टिविटी होती है हर एक डेट को वो अनाउंस करके रखते हैं. तो आईआईटी हैज मेंटेन्ड दिस शेड्यूलिंग एटसेट्रा वेरी क्या बोले उसको, बहुत ही उसको पवित्रता से वो उसको मानते हैं और अनाउंस भी करते हैं, और काफी एडवांस में उसको अनाउंस कर देते हैं हर साल. और इस साल भी उन्होंने कर दिया था, बट ड्यू टू दिस चेंज इन डेट ऑफ जेईई मेन दे हैड टू चेंज द डेट ऑफ एडवांस. लेकिन उन्होंने ज्यादा वक्त नहीं लगाया. जैसे ही जेईई मेन का अनाउंसमेंट हुआ उन्होंने उसको बहुत जल्दी से नया डेट उन्होंने अनाउंस किया. राइट. सर व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट नीट का डिस्कशन हमेशा चलता है कि इज इट द राइट एग्जाम, दूसरा एग्जाम रहना चाहिए, एवरी स्टेट को अलग एग्जाम रखना चाहिए. व्हाट डू यू थिंक? और कोचिंग का जो आर्गुमेंट देखो रहता है गवर्नमेंट की
बोलिए सर। कोचिंग का क्या? कोचिंग का दूसरा आर्ग्यूमेंट है कि अगर यू डोंट टेक नीट कोचिंग यू कैन नॉट टेक द एग्जाम. दैट इज अनदर आर्ग्यूमेंट दैट इज ऑलवेज डिस्कस्ड ऑल द टाइम. वो भी एक है. तो नहीं, अब एक्चुअली इसमें दो चीजें हैं. एक तो आपने बोला कि भाई अलग अलग स्टेट का अलग अलग एग्जाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. अब ये तो देखो क्या है कि स्टेट्स को और गवर्नमेंट को डिसाइड करना है. एक एग्जाम होने के फायदे भी हैं और एक एग्जाम होने के नुकसान भी हैं. फायदा तो ये है कि बच्चे को ज्यादा एग्जाम के लिए भटकना नहीं पड़ता, लेकिन नुकसान ये होता है कि बाई चांस किसी किसी एग्जाम के दिन बच्चे का थोड़ा सा कुछ भी कारण से, मान लो तबीयत खराब हो गई, किसी वजह से 2-3 दिन पहले से घर में कुछ माहौल ऐसा बिगड़ गया, किसी भी कारण से पढ़ाई का डिस्टरबेंस हो गया, कुछ भी. हालांकि बच्चे की 1-2 साल की मेहनत काम आती है, एक दिन की मेहनत काम नहीं आती है. तो ऐसा नहीं होता कि एग्जाम के 2 दिन पहले कुछ स्पेशल कर सकता है वो. बट एग्जाम के अंदर माइंड की जो कंडीशनिंग है वो बहुत मैटर करती है, और बॉडी की जो रिलैक्सेशन है वो भी मैटर करता है. तो अगर बच्चा किसी वजह से डिस्टर्ब हो जाता है एग्जाम के पहले, तो उसके एग्जाम के रिजल्ट में बहुत अंतर आता है उस चीज का. तो इसमें मेरा कहना तो यही है कि अगर भाई अगर इस एग्जाम में भी 2 अटेम्प्ट बच्चों को मिलते हैं तो बेस्ट ऑफ द 2 कैन बी टेकन, क्योंकि अल्टीमेटली बच्चे को मौका तो देना ही चाहिए, है ना. तो 2 बार कर सकते हैं इसको कंडक्ट. बाकी अदरवाइज ये है कि स्टेट को कंडक्ट करना है कि नहीं करना है, स्टेट का कॉल है. पहले बच्चे को थोड़ा एग्जाम देने की इनकन्वीनियंस होती थी कि भाई मुझे सेंटर का भी देना है, स्टेट का भी देना है, और ये प्राइवेट वालों का भी देना है. प्राइवेट का इनका चलो एक बार के लिए इकट्ठा कर सकते हो, बट एटलीस्ट 2 चांस बच्चे के पास होना चाहिए. या तो सेम अथॉरिटी 2 चांस दे, या उसको अपना स्टेट का और जो सेंटर का वो एग्जाम देने का उसको मौका मिलना चाहिए. और एक्चुअली क्या होता है कि स्टेट बोर्ड का भी थोड़ा अलग पढ़ाई लिखाई का पैटर्न होता है. अभी जो सेंट्रल हो गया, तो हालांकि सारे स्टेट्स के जो बोर्ड के पैटर्न हैं वो सीबीएसई एनसीईआरटी से मैच करा दिए गए हैं, लेकिन एक्चुअल में जो पढ़ाई के जो स्कूल के स्टैंडर्ड्स हैं, जो टीचर्स ट्रेनिंग के स्टैंडर्ड्स हैं, वो सेंटर और स्टेट के तो डिफरेंट होते ही है. और जो एक स्टेट लेवल पे जो सुविधाएं होती है स्कूल्स की, सेंट्रल लेवल पे होती है, उनमें अंतर तो होता ही है. तो बच्चों के पढ़ाई के जो स्टैंडर्ड्स है वो अलग अलग हैं, और फिर एग्जाम एक ही स्टैंडर्ड से लिया जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं बच्चे के लिए फेवरेबल नहीं हो पाता है. इसलिए दो किसी किसी भी रूप में उसको 2 अटेम्प्ट तो बच्चे को मिलना चाहिए, 2 चांस मिलना चाहिए एक ही बार में. मतलब दो एग्जाम लें और उसमें से बेस्ट सेलेक्ट करें, या स्टेट अपना ले और सेंटर अपना ले. इंटरेस्टिंग. ओके. एंड तो अबाउट लॉजिस्टिकली बच्चे को दिक्कत रहेगी, बट अदर इट विल मेक द स्टूडेंट वेरी कंफर्टेबल. interesting, sir, because I'm first time I'm hearing this discussion, this point of view. It's quite interesting. Yeah, and makes a lot एंड of आपका sense. जो Yes. सेकेंड पार्ट था क्वेश्चन का कि हाँ. आपका सेकेंड पार्ट था क्वेश्चन का कि कोचिंग के बिना नीट का एग्जाम नहीं दे सकते हैं. तो ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिसमें बच्चों ने अपनी जो स्कूल की पढ़ाई है उस पढ़ाई को सिंसियरली करके भी एग्जाम में सेलेक्ट हुए हैं. एटलीस्ट नीट वगैरह, नीट जैसे एग्जाम में तो बच्चे सेलेक्ट हो ही सकते हैं, क्योंकि नीट का जो पेपर्स है ना वो काफी हद तक, मतलब सिलेबस तो एनसीईआरटी है ही, लेकिन उसका जो लेवल है वो भी एनसीईआरटी लेवल पे ही रहता है. आईआईटी में सिलेबस एनसीईआरटी का होता है, लेकिन उसका जो क्वेश्चन का पैटर्न है और क्वेश्चन की जो डेप्थ है वो काफी ज्यादा हो जाती है, इसलिए बच्चे को एक गाइडेंस की जरूरत होती है. बट नीट के लिए एज सच ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती, लेकिन क्या बच्चे का एक कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है. बच्चे को ऐसा लगता है कि मैं खुद से नहीं कर पाऊंगा, और फिर काफी लाखों की संख्या में बच्चे तैयारी करते हैं, तो बाकी बच्चे सोचते हैं कि यार कहीं ऐसा नहीं कि मैं पीछे रह जाऊं. तो एक कॉन्फिडेंस, अकेले खुद से करने का कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है, इसलिए बच्चे नहीं कर पाते. अदरवाइज जो पेपर का पैटर्न है, क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चन सीधे ही एनसीईआरटी की बुक से ही आते हैं, तो वो पॉसिबल है उससे करना. तो जो बच्चा एक सेल्फ मोटिवेटेड है और इतना पेशेंस रख सकता है कि मैं खुद कर सकता हूं अपने पे, जिसको इतना फुल कॉन्फिडेंस है, तो वो बच्चे कर सकते हैं. So, has COVID, made you realize that besides JEE and NEET, और भी बहुत कुछ सिखा जा सकता है? Like you're into commerce as well. अभी दूसरे लोग भी या commerce में आ गए.
So are there some more हाँ streams ऐसे आपको लगता है कि आप चालू करना चाह रहे हैं दूसरे स्ट्रीम्स कोचिंग? नहीं, एक्चुअली हमारा तो अभी देखो 12th तक के एग्जाम तक सीमित है। हम तो बच्चों को 5वीं क्लास से 12th तक पढ़ाते हैं, और 5वीं से 10वीं तक के जो बच्चे हैं उन लोगों को तो जो उनके लेवल पे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, ओलंपियाड एग्जाम्स होते हैं, और कुछ स्कॉलरशिप एग्जाम्स होते हैं, है ना, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज होते हैं, प्राइवेट बॉडीज के होते हैं, एनटीएससी होता है, जूनियर साइंस ओलंपियाड होता है, तो हम ऐसे वेरियस एग्जाम्स के लिए बच्चों को तैयार करते हैं। और हमारा मेन मकसद इस लेवल पे बच्चों को तैयार करने के पीछे है कि उनको जो 11th-12th में एकदम से बहुत बड़ा चैलेंज का सामना करना होता है, उसके लिए वो मेंटली प्रिपेयर होने लग जाए, राइट, ताकि उनको 11th में आके एकदम से कंप्लीटली एक शिफ्टिंग उनको नजर नहीं आए, एकदम से वो थोड़ा थोड़ा मेंटली प्रिपेयर हो जाए उस चीज के लिए। सो दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव एट दिस लेवल। तो उसके लिए हम बच्चों को तैयार करते हैं। एंड अभी हमारा फोकस तो इन्हीं एग्जाम्स पे है कि नीट हो गया, आईआईटी हो गया, जेई मेन, जेई एडवांस हो गया, और फिर ये कॉमर्स वाले एग्जाम हो गए, सीए हो गया, सीएस हो गया, क्लेट एग्जाम हो गया, है ना। अभी आईएम के लिए भी एक एडमिशन टेस्ट होता है 12th वाले बच्चों का, आईपीएम एक कोर्स होता है वहां पे 5 साल का, तो उसके लिए भी बच्चों को हम तैयार करते हैं। आईएम इंदौर और आईएम रोहतक का होता है, तो उसके लिए तैयार को कराने के लिए कोर्स भी कराते हैं बच्चों को। तो ये अब मतलब हमारा फोकस जो है ना वो एक्चुअली अभी 12th तक ही है, फिर इसके बाद देखेंगे आगे और कुछ चालू करना होगा तो विल सी दैट। So what about girl students and boy students? Is it more of boys in JEE and more of girls in NEET? कुछ changes है वो numbers में? नहीं, एक्चुअली नीट में तो अभी लगभग 50-50% ही होता है, करीब करीब। Okay. लगभग पढ़ने वाले बच्चों की स्ट्रेंथ भी इतनी होती है, रिजल्ट भी करीब करीब इसी रेशो में होता है। जेई में ऐसा हुआ है कि आईआईटी में अभी 20% सीटें रिजर्व कर दी गई हैं गर्ल्स के लिए। और रिजर्व का मतलब ये नहीं कि भाई जो पहले सीटें थी उसमें से 20% कर दी है, 20% एक्स्ट्रा सीटें क्रिएट की गई हैं। तो बच्चियों मतलब गर्ल्स के अंदर एक अच्छा मोटिवेशन आया है इस चीज को लेकर के, और धीरे धीरे उनका रुझान भी इंजीनियरिंग की तरफ बढ़ रहा था, और ये सीट्स उनके लिए एक्सक्लूसिवली अवेलेबल कराने की वजह से बच्चों में और ज्यादा उत्साह है इसको लेकर के, और इंजीनियरिंग के प्रति उनकी जो एक तरह से डेडिकेशन है, चॉइस है, वो बड़ी है। Any chances or any hopes of international to branch out internationally, sir? कुछ international एक्चुअली coaching? हम लोग हमारा ऑलरेडी दुबई में सेंटर था। Okay. कोविड के पहले हमने 2-3 साल पहले हमने खोला था, और Okay. कोविड के टाइम पे हमको बंद करना पड़ा, फैकल्टी को वापस बुलाना पड़ा। अच्छा. और अच्छी बात यह कि हमारे दुबई सेंटर पे एक बच्चा था, तो उस बच्चे ने जेई मेन 2021 में, जेई मेन 2021 में सारे एनआरआई बच्चों में, जितने भी एनआरआई बच्चों ने जेई मेन का एग्जाम दिया था, उन बच्चों में वो फर्स्ट रैंकर था। अरे वाह, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस. among all those students he was first, and जेई एडवांस में उन सारे बच्चों में सेकंड था, एनआरआई बच्चों में। नाइस, गुड गुड, इंटरेस्टिंग. तो वो बड़ी अच्छी अचीवमेंट है। अभी हम वापस से वापस जाएंगे। अभी कोरोना खुल गया है, ये हो गया है खत्म, तो अब वापस से रिलैक्स हो रही है सिचुएशन, तो वी विल अगेन गो देयर। But is it important now to open more centers? Isn't online will take over? अभी नहीं, एक्चुअली क्या है, हमारे ऑलरेडी इंडिया में काफी ज्यादा जगहों पे सेंटर्स ऑलरेडी चल रहे हैं। right. और तो अभी फिलहाल तो हमको एज सच ऐसे कोई सेंटर खोलने की ऐसी रिक्वायरमेंट ज्योग्राफिकली तो आ नहीं रही है। जो सेंटर हमारे हैं उन सेंटर को हम अच्छे से चलाएंगे, और जहां जहां हमको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हमारी रिसर्च चलती रहती है, और हम लोगों को ढूंढते रहते हैं कि भाई हमारे साथ अच्छी टीम जुड़े। तो जहां हमको टीम मिलती जाएगी और हमको लगेगा कि हाँ यहाँ पे मतलब एक फेवरेबल कंडीशंस हैं चलाने के लिए, तो हम लोग वहां पे खोलेंगे भी सही, वी आर ओपन टू दैट। पर ऐसा नहीं है कि भाई हम एकदम ताबड़तोड़ जाकर के हमको खोलने में ही ध्यान देना है। हम तो ये है कि भाई जो है उसको अच्छे से चलाओ, और जहां पे हमारी रिसर्च टीम को मौका मिलेगा और टीम अच्छी मिलेगी और जगह मतलब वो एक ओपन करने लायक हो गए, तो हम लोग उसको खोलेंगे भी सही।
एंड ऑनलाइन वगैरह के माध्यम से भी जितने ज्यादा बच्चों को टच कर सकते हैं उतने बच्चों को टच करेंगे। Okay. So one important point that everybody talks about कोटा में is stress levels बच्चों का. And I visited your center, तो मैंने देखा है बहुत counseling offices है नीचे. है ना? हाँ। हाँ. So what is the situation now? Stress level उतना ही है, कम कुछ हो रहा है? एक पहले का जो कलेक्टर था, he was doing a lot for stress level कोटा. हाँ, डॉक्टर सुरपुर साहब थे, डॉक्टर रवि सुरपुर। हाँ हाँ। So what are the efforts being made now? Anything being done specially by Resonance? कुछ anything in? तो एक्चुअली जो स्ट्रेस लेवल वाली बात है, तो एक्चुअली देखो, अगर टारगेट्स हाई रहेंगे, गोल्स ऊंचे रहेंगे, तो स्ट्रेस तो नेचुरली किसी का भी बढ़ सकता है। मतलब बच्चे तो बच्चे हैं, जो ग्रोन पीपल होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उन लोगों को स्ट्रेस आ जाता है। तो बच्चे ही है ना। बच्चारों ने 10वीं तक कोई स्ट्रेस देखा नहीं होता है, क्लास 10 तक बच्चा घर में रहता है, मम्मी का लाडला रहता है, और एकदम से उसकी हर चीज के लिए उसकी ख्वाहिशें पूरी होती रहती, जैसा वो चाहता है वैसा ही होता है। और 11वीं में बच्चा एकदम से घर से बाहर निकल के यहाँ आता है, और इतनी हार्ड सब्जेक्ट होते हैं, पीसीएम कोई इजी सब्जेक्ट तो होते नहीं है, और उसमें उसको दिन रात मेहनत करनी होती है अपना स्थान बनाने के लिए। तो जो जो एक जो ट्रांजिशन होता है ना, 10 से 11 में आते ही जो ट्रांजिशन होता है, वो ट्रांजिशन एक तो चलिए बहुत जबरदस्त होता है, बहुत बड़ा ट्रांजिशन होता है। और उस ट्रांजिशन की वजह से और जो एक इतना कॉम्पिटिटिव लेवल होता है, पूरे देश भर के टॉपर बच्चे यहाँ आके पढ़ते हैं, उनके साथ बच्चे compete करते हैं, तो स्ट्रेस होना एक नेचुरल फिनोमिना है। इसको उस वे में नहीं देखा जाना चाहिए कि भाई पढ़ाई का बोझ इतना ज्यादा है इस वजह से। एक कंपटीशन की रेस की वजह से बच्चा थोड़ा स्ट्रेस में रहता है। और लेकिन इसके बावजूद भी मैं बच्चों को अप्रिशिएट करूंगा कि जैसे आईआईटी वाले बच्चों के तो विचारों के कई बार नेगेटिव मार्क्स भी आते हैं टेस्टों में, और नेगेटिव मार्क्स आने के बावजूद भी बच्चा वापस उठ के खड़ा होता है, अगले टेस्ट की तैयारी करता है, और अगले टेस्ट में अच्छा करता है। तो देयर आर, भाई देखो यहाँ पे लगभग 1.5 लाख 2 लाख बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, 1.5 लाख के आसपास बच्चे पढ़ने आते हैं, और उसमें से मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट इतने बोल्ड बन जाते हैं कि वो हर तरह की परिस्थिति का सामना करने के लायक होते हैं। अब ठीक है, 100-200 बच्चे थोड़ा अपने आप को वीक फील करते हैं, तो ऐसे बच्चों को हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश भी करते हैं, और उन बच्चों को आइडेंटिफाई करने के बाद में उन बच्चों को प्रॉपरली हम लोग गाइड भी करते हैं, काउंसलर्स भी होते हैं, और टीचर्स आर द बेस्ट काउंसलर्स एक्चुअली। तो क्लास में उनको टीचर्स 1.5 घंटे की क्लास में 5 मिनट 10 मिनट का मोटिवेशन बातें भी बताते हैं, पुराने बच्चों की बातें बताते हैं कि देखो भाई ये बच्चा ऐसा था, इतना वीक था, फिर भी इसने ऐसा किया। और हमारे 3-3 महीने में ओरिएंटेशन सेशंस भी होते हैं, जिनमें जैसे मैं भी लेता हूँ, हमारी टीम के और जो हमारे कोर टीम मेंबर्स हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट से, वो लोग भी लेते हैं। तो हम लोग पुराने मतलब 4-4 5-5 घंटे की मोटिवेशन क्लासेस होती है हमारी, और उनमें बच्चों को काफी कंफर्टेबल बनाते हैं, और उनको समझाते हैं, सिखाते हैं सारी बातें कि भाई आईआईटी या एनआईटी या नीट का जो इसके थ्रू मेडिकल कॉलेज में होता है, एम्स में होता है, दिस इज नॉट एवरीथिंग इन लाइफ। दिस इज आज की तारीख में आपके पास ये गोल है, आप इस गोल के लिए मेहनत करो। समय के साथ गोल चेंज होते रहते हैं, और जब चेंज होता रहता है आपके लाइफ में, मान लो पूरी लाइफ में 1000 गोल आते हैं, आपके लाइफ में आपने 1000 गोल सेट किए, अब जरूरी थोड़ी कि आप पूरे 1000 के 1000 गोल में सक्सेसफुल हो ही जाओगे, कुछ में सक्सेसफुल होगे, कुछ में नहीं होगे। ये तो जीवन की प्रक्रिया है जो कंटिन्यूस चलती रहती है, और अपॉर्चुनिटीज आती हैं जाती हैं, आप कभी उसको ग्रैब कर पाते हो, कभी नहीं कर पाते हो। तो एक इजीनेस लाइफ में बच्चों को देखने के लिए उनको समझाते हैं, उनको गाइड करते हैं, ताकि वो कंफर्टेबल रहे, अपना बेस्ट करने की कोशिश करें। ये नहीं कि यार जो अपना बेस्ट है उससे हम सफल हो ही जाएं, बट यू कैन नॉट डू मोर देन योर बेस्ट। सो बच्चों को सब चीजें सिखाते हैं, दिस इज हाउ वी हैंडल देम। Sir, any information on are girl students more stress, boy students more, ऐसा कुछ है एनालिटिक्स? नहीं, एक्चुअली ऐसा तो नहीं होता है भाई। देखो, अगर हम कोटा में ओवरऑल बच्चों की संख्या को देखें तो ऑब्वियसली बॉयज की संख्या ज्यादा है, गर्ल्स की संख्या कम होती है, क्योंकि मेडिकल में तो लगभग बराबर से होते हैं, पर इंजीनियरिंग में बच्चों की ज्यादा होती है। तो
ओवरऑल देखें तो बॉयज ज्यादा होते हैं, गर्ल्स कम होती हैं। और तो पॉपुलेशन साइज के हिसाब से ही, मतलब जैसे बच्चे ज्यादा हैं तो बच्चे ज्यादा संख्या में परेशान होते हैं रिलेटिवली। बट ये कि ये चीजें हैंडल हो जाती हैं, जैसे ही किसी बच्चे के बारे में पता होता तो वी टॉक टू देम एंड मेक देम फील नॉर्मल। Okay. Any chance of the coaching industry in Kota becoming edtech? Edtech is नहीं is देखो, the new wave. एडटेक तो कोटा इंडस्ट्री यूं मान लो कि कोरोना ने कर ही दिया है। मतलब सब लोग अपने अपने हिसाब से प्रिपरेशन तो कर ही रहे थे, लेकिन उस प्रिपरेशन को उतना ज्यादा वॉल्यूम पे लेके नहीं गए थे। अब धीरे धीरे हम चीजों को कर रहे हैं, और कोई मुश्किल काम भी नहीं है और असंभव काम भी नहीं है। जब हम लोग तो हमने तो इसको एजुकेशन को जिया है एक तरह से, हमने तो उसको अच्छी तरह से जीवन में उतारा हुआ है। पिछले 27 साल से तो मैं खुद इस काम में लगा हुआ हूँ। हमने जिस काम को जिया है, एडटेक क्या है, इट इज ओनली है जो टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ जो कंटेंट है उसको एक जगह से दूसरी जगह तक डिलीवरी मैकेनिज्म को आसान बनाता है, और कुछ चीजों को इजी वे में समझाने में मदद करता है ना। ये दो इसके मुख्य ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो उन ऑब्जेक्टिव्स को के माध्यम से हम ज्यादातर बच्चों तक भी पहुंचेंगे, और कंटेंट को भी थोड़ा डिलीवर करने का जो तरीका है उसको और अच्छा बनाएंगे। बट ये बात में कोई दो राय नहीं है कि कोटा विल अल्टीमेटली अडॉप्ट दीज थिंग्स एंड विल बी अ गुड कॉम्पिटिटर फॉर द एग्जिस्टिंग एडटेक्स। So what do you do about faculty? अभी faculty छोड़ के चले जाते हैं, बच्चे छोड़ के चले जाते हैं. How do you retain faculty? How do you find new faculty? कुछ process है residence में, different process? एक्चुअली फैकल्टी का जाना ये कोई नई बात भी नहीं है, और हर साल कुछ ना कुछ फैकल्टी जाते हैं। अब जैसे हम लोगों के पास में प्री कोविड लगभग 1200 फैकल्टी थे। अब 1200 में से लगभग 8-10% फैकल्टी हर साल ट्रांजिशन करते हैं ड्यू टू सम और अदर रीजन। कई कुछ किसी फैकल्टी का ये होता है कि भाई उनको अपने शहर में जाना है ना। किसी फैकल्टी का तो कोई ना कोई रीजन आता रहता है जिस वजह से फैकल्टी जाते हैं। कभी किसी चीज को लेकर डिससेटिस्फेक्शन भी होता है, तो कभी उनको अपने घर जाना होता है। तो देर आर वेरियस रीजंस ड्यू टू विच द फैकल्टी मेंबर ट्रांजिट्स फ्रॉम वन कोचिंग इंस्टीट्यूट टू द अदर। और सिस्टम के अंदर इतनी बेंच स्ट्रेंथ भी होती है कि भाई 8-10% जो भी ये चेंज ओवर होता है उसको सिस्टम हैंडल कर लेता है, क्योंकि ऑलरेडी इतना क्वेश्चन तो रहता है। और हम लोग रेजोनेंस की अगर बात करें खास तौर से, तो हम लोग तो जब से हमने रेजोनेंस चालू किया है तब से ही हम लोग फैकल्टी को ट्रेन करते हैं। जैसे मैं खुद फिजिक्स पढ़ाता हूँ, तो मैं फिजिक्स के लोगों को अपनी क्लास में ले जाके बिठाता हूँ और उनको सिखा, मतलब उनको वो देखते हैं कि भाई कैसे पढ़ाते हैं। एंड पिछले 12-13 साल से तो हमने हमारे फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम को और बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक बनाया है। भाई पहले तो क्या टीचर की क्लास, जैसे मेरी क्लास में बैठ के फिजिक्स के फैकल्टी और तैयार हो रहे हैं, अब ये हो गया कि उनका खुद का एक जैसे स्टूडेंट का बैच होता है, ऐसे फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम में ट्रेनिंग फैकल्टीज का बैच बनता है। मान लीजिए 30 लोग एक साथ ट्रेन हो रहे हैं, 50 लोग एक साथ ट्रेन हो रहे हैं, तो हमारे जो सीनियर फैकल्टी मेंबर्स हैं जिनको 10-10 साल, 15 साल, 20 साल का एक्सपीरियंस है, वो लोग उनको पढ़ाते हैं। तो मान लीजिए 30 चैप्टर हैं और 5 फैकल्टी की हमने जिम्मेदारी लगा दी, तो 6 चैप्टर पढ़ाएंगे वो लोग। तो इस तरह से हम लोग खुद ट्रेन करते हैं फैकल्टीज को। लगभग 9 महीने की उनकी ट्रेनिंग होती है। पूरे देश भर से आवेदन प्राप्त करते हैं, फिर उनको छांटते हैं, एग्जाम लेते हैं, फिर उनका इंटरव्यू लेते हैं, और फिर उनका एक जब हम ये सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ भाई इनका टीचिंग के प्रति एक अच्छा एटीट्यूड है, तब उनको हम ट्रेन करते हैं। आईआईटी से, एनआईटी से लोगों को लेके आते हैं और उनको ट्रेन करते हैं। सो देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग प्रोग्राम, और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से हम हर साल बच्चों को तैयार करते हैं, मतलब ट्रेनीज को तैयार करते हैं। और जब हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तब उनको, और बहुत सख्त ट्रेनिंग होती है, मतलब हम जो टीचर ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उनका हर संडे टेस्ट होता है, और उन लोगों की कॉपियां भी चेक होती है। मतलब उनको जो हम होमवर्क देते हैं उसको चेक करते हैं। कई लोग तो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम को शुरू में छोड़ देते हैं, कम से नहीं होगा इतना कठिन प्रोग्राम, क्योंकि एक फैकल्टी पे लगभग 1000 बच्चों का भविष्य टिका रहता है। तो हम बच्चे से भी ज्यादा उनको ट्रेन करते हैं।
बच्चा से गलती हो जाए लेकिन फैकल्टी से गलती नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, सही बात है। ठीक है सर, anything else you want to say? What is Resonance henceforth? अभी plans क्या है next 1 year, next 2 years? What new? नहीं, एक्चुअली हमारे देखो, हम तो ज्यादा प्लान बनाते नहीं है, हम तो अपना काम करते हैं। हमारा एक ही उद्देश्य रहता है कि बच्चों को अच्छी से अच्छी हम शिक्षा दे पाए। हमारा जो हर साल हमारे अंदर, खुद के अंदर एज ए टीचर एज एन इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट होता है, क्योंकि हर साल हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। तो जो एक्यूमुलेट करते जाते हैं उन चीजों को बच्चों तक अच्छे से पहुंचा पाए, यही हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है। और अब ये रहता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक हम रीच बनाए अपनी, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक हमारी जो पेडागोगी है, जो हमारी लर्निंग्स है, उनको अधिकतर बच्चों तक बनाए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सक्सेसफुल बनाए, यही हमारा उद्देश्य रहता है। ठीक। Okay, sir, we've almost come to an end. Thank you. Thank you so much. Thank you so very much for much. being part of Thank this. you. Thank you. All the best. Thank you for this interview. Thanks a lot, and same to you. All the best. Sir. Yeah. Bye bye. Thanks. Bye.